Hello, good morning dear students. Here I am Iram Mehtab Ansari and today we are on practical mode and today's practical topic is schematic stomata. So what are stomata? Stomata क्या होते हैं ये हम पहले जान लेते हैं. What is the definition of stomata? The stomata are tiny pores which found on the surface of the leaves. वो छोटे छोटे होल्स जो लीव्स के सरफेस पर पाए जाते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं. वो लीव्स के सरफेस पर हमें विदाउट माइक्रोस्कोप विदाउट डाइसेक्शन नहीं शो होते हैं. यू कैन सी द डायग्राम. आई एम हेयर जूमिंग इट. दीज टाइप्स ऑफ टाइनी पोर्स, these tiny pores you can see here. If we zooming it with the help of microscope, we can easily see on the upper surface or lower surface of the leaves. I hope you all understand what is the means of stomata. Yes, so there are two types of stomata. उसको हम आगे पढ़ेंगे. पहले हम यहाँ देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर्स. Here we are having two types of stomata. The stoma open and stoma close. You can see easily. There are given parts. These all are parts of stomata. So first of all, before to learn about these types of stomata, we have to show the next picture. Here we can see very clearly about the stomata, types of stomata. These are the types of stomata. How many types of stomata are? They are of two types. यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो रहा है और आपको प्रैक्टिकल मोड पर समझ भी आ रहा है कि हाँ ये क्या चीज़ें होती हैं. तो क्लोज स्टोमेटा, when the stomata get close, not functional. So these types of stomata are known as closed stomata. Open stomata, when it is functional or active, these types of stomata are known as open stomata. So here we are having their parts, same parts in stomata closed and stomata open. So see the purple color structure, the round shape structure, this is known as the nucleus. The green dot like structures we can see very clearly that are chloroplast. Vacuole are the bubble shaped structure present between the stomata. Next one is the guard cell. Guard cells are present above the chloroplast. Now the last one is the cell wall. Okay, make it very clear. 1 2 3 4 5. There are 5 parts of stomata. Now here we can see about the closed stomata. Sorry, open stomata. Same as that one is nucleus, that is vacuole, that are chloroplast, cell wall, and the light green structure is known as guard cells. Okay. So how can we identify they are open or they are closed? When the line are joined together, they are not having any space. This condition is known as the closed stomata. When these lines are too far from each other और यहाँ पर होल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, these are known as the open stomata. तो जब ये फंक्शनल होते हैं या एक्टिव होते हैं, जब इनको सनलाइट की नीड होती है तो सनलाइट इन्हीं की थ्रू अंदर लीव्स में जाती है. इनका मेन फंक्शन होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का इन्हीं होल्स के थ्रू. दैट्स वाई दे आर एक्टिव एंड कॉल्ड ओपन स्टोमेटा. और जब ये इनएक्टिव होते हैं ड्यूरिंग नाइट और ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ये स्टोमेटा का यहाँ पर कोई फंक्शन या रोल प्ले नहीं होता है. आई होप यू कैन मेक इट वेरी क्लियर. और अगर किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न हो, यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी. नाउ मूव टू द फॉरवर्ड दैट this structure, this is the complete structure in which we can see the whole structure of the single open stomata. This is open because this hole is clearly seeing this is open stomata. This one is open stomata, stoma open. They are also called stoma.
same as they having chloroplasts, vacuoles. Here some difference. Thick inner walls, subsidiary cells. Subsidiary cells are the upper portion covered the circular part. Nucleus, the thin outer walls, जो इनकी हल्की हल्की सी आउटर वॉल्स होती हैं उनको कवर अप करे रहता है, वो थिन आउटर वॉल्स होती हैं. स्टोमेटल पोर, ये जो पोर ओपन होता है, जब ये पोर ओपन होता है दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द ओपन स्टोमेटा. अगर ये स्टोमेटल पोर क्लोज होता है लाइक दिस इज कॉल्ड द क्लोज स्टोमेटा. बस इतना सा डिफरेंस है. You can make it very clear. Now the outermost part, this cell wall, these cells are known as the epidermal cells. Why they are called epidermal cells? Because they help in the formation of epidermis part, the complete body structure. Try to practice the stomata very clearly. Now this is the main और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज़ गार्ड सेल, जिसकी हेल्प से जो आपके स्टोमेटा वो ओपन और क्लोज होते हैं. और मेन फंक्शन गार्ड सेल ही प्ले करता है स्टोमेटा के स्टोमेटल पोर्स को ओपन और क्लोज करने का. नाउ मूव टू वर्ड. सो आई होप यू कैन मेक इट वेरी क्लियर. यहाँ पर आपको वही पार्ट्स दिख रहे हैं बट यू कांट सी वेरी क्लियरली, और जो कि हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसको ईजिली फाइंड आउट कर लिया है. नाउ अबाउट द स्टोमेटा, सम पॉइंट्स अबाउट द स्टोमेटा आर, द फर्स्ट वन इज स्टोमेटल पोर. दे आर माइन्यूट पोर्स और द ओपनिंग्स फाउंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स. ये छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको. स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि प्लांट लीव्स, जो लीफ होती है प्लांट की, उनके सरफेस पर पाए जाते हैं, अबव साइड या लोअर साइड. These stomatal pores play a significant role in gaseous exchange. अच्छा, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? They play role in gaseous exchange. gaseous exchange में क्यों प्ले करते हैं रोल? क्योंकि ये क्या करते हैं, when they are breathing और attempting the process of photosynthesis, तो ये क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है ये जो हम सराउंडिंग एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में जो CO2 होती है वो ये स्मॉल पोर्स कैप्चर कर लेते हैं और ऑक्सीजन अपने इन्हीं पोर्स के थ्रू आउटर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं. तो ये इनका मेन फंक्शन होता है. दूसरा ये होता है ये सनलाइट को भी ऑब्जर्व करते हैं. तो ये जो CO2 है इट इज़ वन टाइप ऑफ गैस, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इट प्लेज अ मेन सिग्निफिकेंट रोल इन गैसेस एक्सचेंज. तो हम यहाँ कह सकते हैं गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है. नाउ द नेक्स्ट इज गार्ड सेल. क्या फंक्शन होता है? किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है इनका, डम्बल शेप स्ट्रक्चर होता है, विच फंक्शंस बाय कंट्रोलिंग द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा. ये मैंने आपको बताया था. गार्ड सेल की हेल्प से ही स्टोमेटा जो है वो ओपन और क्लोज हो सकते हैं, और जब तक कि ये गार्ड सेल एक्टिव नहीं होते हैं तब तक कि ओपन और क्लोज होने का सिस्टम स्टोमेटा अटैम्प्ट नहीं करता है. ये तब ओपन होते हैं जब सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है, तब ये क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं. व्हेन सनलाइट जो है वो एट द नाइट, जब नो सनलाइट, तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप में क्लोज हो जाते हैं और ये अपना एक रोल प्ले करते हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट. नाउ मूव टू वर्ड. अच्छा, ये क्या है? इसेंशली दिस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर. मेन फंक्शन हम जानते हैं, फैक्टर जो है फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है प्लांट्स को. कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने का काम करता है अलॉन्ग विद वाटर. कैरी आउट फोटोसिंथेसिस द प्रेजेंस ऑफ लाइट. फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. ऑक्सीजन इज रिलीज थ्रू स्टोमेटा, और इसी के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है. जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें ये आपका स्टोमेटा है, यहाँ से CO2 क्या करा इसने ली, और इसमें ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो नीड हुई CO2 की वो फॉर्मेशन करा और ब्रेक डाउन हुआ वाटर का, और इसने क्या करा, ऑक्सीजन को रिलीज़ आउट कर दिया. ये आप एरो से समझ सकते हैं, ये इनहेल हो रहा है, ये एक्सहेल हो रहा है. तो प्लांट्स को CO2 की नीड होती है, इसलिए उन्होंने इनहेल कर लिया, और हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, इसलिए उसको क्या कर दिया, एक्सहेल कर दिया. ये इसका एक्सपायरेशन पार्ट होता है जो एक्सपायर करता है आउट ऑफ द बॉडी. नाउ ऑक्सीजन इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ स्टोमेटा. यस, प्लांट के लिए ऑक्सीजन कोई भी वैल्यूएबल नहीं होता है. रिजल्टिंग फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड सम वाटर वेपर. ये अपना फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस करता है, सम वाटर वेपर रिलीज़ करता है, एंड ऑल्सो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. जब आपने देखा होगा इन विंटर्स यू कैन ईजिली सी, जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वेपर्स की फॉर्म में एक
जब सनलाइट पड़ती है लीव्स पर तो वेपर्स की फॉर्म में इसमें से कुछ इवेपोरेशन शो होता है. दिस टाइप ऑफ इवेपोरेशन लॉस ऑफ वाटर इज नोन एज द ट्रांसपायरेशन. जब उसमें से कुछ भाप सी निकलती हुई दिखाई देती है तो वो प्रोसेस जो है वो ट्रांसपायरेशन की होती है. क्यों होती है? क्योंकि जब प्लांट्स में एक्सेस ऑफ वाटर होता है या ज़्यादा वाटर होता है तो वो उसको क्या करते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं, जो उनके लिए यूजफुल नहीं होता है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर, about the definition of stomata, types of stomata, their parts, their structure, their definitions, their functions. If you are having any queries, you can contact to me and to ask very clearly. Okay, thank you so much.